Unacademy. Let's crack it. Tell us something about you. Yes, sir. Sir, my name is Animesh Rajput and I belong from Jodhpur, Rajasthan, and I've completed my LLB from RJNUL Patiala, and I've done my schooling from the same school, be it 10th. LLB from where? NLU Patiala, sir. Okay, NLU Patiala, right. Yes, sir. And I've done my schooling 10th and 12th from St. Anne School, that is also in Jodhpur, sir. So let me know 3 basic points, according to you, which are better in NLU rather than other universities. So very first point which is better in NLU than the other universities, first is that the students of NLU get an exposure of studying certain legal areas from the experts. Like we used to get criminal law lectures by Shri Ramjet Malani sir. The second point is that we get exposure by doing moot court competitions. We get an opportunity to participate in international moot court competition, which help us to get through the practical aspect of the law. The third most important point of being from NLU is that there is a proper systematic approach of our examination. The procedural law is generally asked in practical form, whereas the substantive law is asked, the question answers are faced in theoretical form, and exams are conducted in a timely manner. We have a semester pattern, so we tend to give around 18 exams in a year. What have you told us now? Is I think the feature of NLU. Yes, sir. But it does not mean that it is not the feature of the NLU. We research for this aspect. I'm sorry, sir. I guess you asked that what is the distinguishing feature between the NLU? Difference between the NLU and other law universities. Yes, sir. So that is the basic. So first difference was exposure, second was moot court, and third is told that procedure law is asked in practical law. Yes, sir. Okay, fine. Now, LLM you have not done? No, sir. So I graduated in 2021, and after that the Honorable High Court rolled out the vacancies. So I started preparing for the RJs only, sir. Okay. राजस्थान की 3 सिटी के नाम मुझे पता हो, इनको उनके नाम के अलावा किसी और नाम से भी जाना जाता है. Yes, sir. Sir, the first city is Jodhpur, which is also named as Surinagari. The second is Jaipur, named as Pink City. The third is Udaipur, named as City of Lakes, sir. And ask for the fourth one? So fourth is Jaisalmer, sir, which is known as the Golden City. Golden City. You know why? Because the fort there and the color of stone which is present there is of golden color, sir. Okay. ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कहीं मेंशन कर रखा है, वो कौन सा पार्ट है? Sir, शेड्यूल. I'm sorry, sir, I'm not aware of that. You are not aware. Okay. You heard about the various list for legislation purposes? Yes, sir. Sir, Schedule 7 talks about the various lists. How many entries are there in the union list? Sir, 97, sir. 97 entries. Which entity is the residual entity? Sir, the concurrent list, sir. Concurrent list. Yes. Residual entry in the union list. Sorry, sir, I'm not aware about the residual entry of the union list. Okay. There is any article which is talking about that in the nature of residual, which if not done,
in another list will be covered by the parliament, will be Yes, sir. Sir, Article 248 gives the 248 gives the residuary power to the to the parliament, sir. Okay. There is any provision in the IPC which are dealing with the residual and residual provisions? Whatever has been done will be punishable, whatever has been done will be dealt in this section. Yes, so section 55A of the Indian Penal Code does talks about the definition of appropriate government. In that we can say My that. question is the provision which nature is residual. Okay, like 511 is residual, na? Yes, sir. Attempt. All other attempts will be punished. Yes, sir. Any other 2 or 3 provision which you can see, which you can tell us, which are residual in nature. I'm sorry, sir. I'm not aware about the provisions which can be of residual in nature, sir. What do you mean by nature? Sir, residual mean that of any provision which could be used by any 2 authorities, sir. Any 2 authority? Yes, sir. Okay, fine. चलिए, IPC के अंदर एक ऑफेंस हुआ करता था एडल्ट्री, Yes, ठीक sir. है? किस लैंडमार्क जजमेंट से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया? Sir, Joseph Stein versus Union of India, sir. और अभी भी एक लीगल सेंस के अंदर वो सर्वाइव कर रहा है. Yes, sir. वो लीगल सेंस कौन सा है जो सीआरपीसी में स्पेसिफिकली डील भी किया जा सकता है? यस सर. सर, वो लीगल सेंस ऐसे है कि अगर 2 माइनर अगर जो लोग अगर कर लेते हैं, अच्छा एडल्ट्री ना, सॉरी सर, आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन 377. यस सर. सर, सेक्शन 198 जो है उसमें बोलता है कि अगर एडल्ट्री का ऑफेंस हो जाता है तो आपको परमिशन, जो एग्रीड पर्सन है वो अगर कंप्लेन करेगा तो ही कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट. पर वो तो अपना पे डिफेक्चर हो गया ना, खत्म हो गया Yes, ना वो तो, sir. Yes, sir. अपना 498 चला गया. मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी भी ऐसा प्रोविजन है कोई जहाँ पर एडल्ट्री को कंसीडर किया जा सकता है, कोर्ट उसको देखता है कि ये ग्राउंड बन सकता है उस केस का, वो कौन सी प्रोसीडिंग है? आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोविजन. ओके. चलिए, 377 जो है that has been declared unconstitutional under Navtesh Singh Chauhan. Am I right? Yes, sir. Am I right? Or am I partial right? So you are partially right, sir, because Navtesh Singh Chauhan Union of India has only partially declared that section unconstitutional, not wholly unconstitutional. But earlier you said yes, but I agree with my statement. No, sir, you said that I was only agreeing with the name of the judgment, sir. Okay, fine. Now, criminal breach of trust is what I wanted. What's the difference between criminal breach of trust and criminal misappropriation? Yes, sir. Sir, in criminal breach of trust, the property which is entrusted to the person is entrusted innocently. The first time entrustment to the property is in an innocent manner, whereas in the criminal misappropriation, there is no entrustment of property, sir. Property को innocently entrust करना makes what? Sir, I can explain it with an example. How if there are 3 employees in a company, and the employee says that give me your part of salary, I'll deposit it in a PF account. So the employees give them the salary so that it could be deposited in their PF account. So what the employer does, that the entrustment to the employer is in innocent manner, that yes, the salary will be deposited in the PF account. However, the employer misappropriates it. So it is a criminal breach of trust, sir. Whereas entrust करना, जैसे मैंने सर को प्रॉपर्टी दिया है, entrust और सर ने प्रॉपर्टी ली, दोनों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या? no, sir. गिवर और टेकर के लिए सिंपली एक अगर कहा जाता है कि इनोसेंटली एंट्रस्ट किया, मींस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द गिवर. Yes, sir. Sir, innocently Here you are talking about the accused. yes, sir. So उन्होंने भी innocently ही लेनी चाहिए, उन्हें भी प्रॉपर्टी स्टार्टिंगली. ठीक है. But at the time of entrustment there was no such intention. Yes, sir. Okay. अगर at the time of entrustment ऐसा कोई intention है, तो whether will you go for 406 or any other section? सर 420 में जाएंगे सर. 420 के अंदर जाएंगे. Okay, fine. चलिए. 154 इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है. Yes, sir. सर 154. Yes.
So 154, what I can recall is that obstructing public servant who is entrusted to suppress any riot or affray, sir. 154. Yes, sir. 150 dealing about the land on which you have committed about the assembly, the land or land or something like that. Sir, I guess it's 155, what I can recall right now, sir. Okay, fine. Affray, what do you have heard? Yes, sir. Affray word. Yes, sir. What does it basically mean? Sir, affray means when two persons fight and cause public annoyance or nuisance at a public place, sir. That's legal affray? Yes. Yes, sir. अगर होटल के ग्रुप के अंदर Yes, sir. 4% 2 करोड़ से झगड़ रहे हैं, उनकी आवाज जो है होटल की कम्युनिटी को बढ़ रही है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, and it's okay. Now we can say that community affray. नहीं सर, वो पब्लिक नहीं सर, वो पब्लिक न्यूसेंस फिर भी हो सकता है, बट एफरे नहीं होगा सर. Affray नहीं. ठीक है. ट्रेन के अंदर एक फर्स्ट क्लास एसी कोच है, ठीक है. फर्स्ट क्लास एसी कोच के अंदर 2% जो है आपस में कोल्ड वॉर कर रहे हैं, 2 डोर से चला रहा है, और उससे जो है को पैसेंजर जो दूसरे बोगी के वो परेशान हो रहे हैं. नाउ इट्स अफ्रे. यस सर. तो ट्रेन इज अ पब्लिक प्लेस अकॉर्डिंग टू यू. यस सर. और यही चीज अगर एक प्राइवेट बस में होता तो एफरे नहीं होता सर. पब्लिक प्लेस और 2 लोगों की एसेंशियल जोधपुर से 100 पैसेंजर शिफ्ट हुए जयपुर के लिए. Yes. 100 पैसेंजर थे उस बस के अंदर, प्राइवेट बस थी, जैन ट्रेवल्स यानी महालक्ष्मी ट्रेवल्स यानी. वहां पे 2 पैसेंजर का आपस में फाइटिंग स्टार्ट हो गई और वो दूसरों की 20 को ब्रीच कर रहे हैं. नाउ इट्स अफ्रे. यस सर. द लास्ट टाइम यू टोल्ड दैट सर प्राइवेट बस, आई थॉट दैट यू आर आस्किंग दैट अगर 2 ही लोग हैं और वही ओन कर रहे हैं उस बस को, तो फिर वो प्राइवेट बस. पर हाउएवर सर, इसमें जो ये प्राइवेट बस है, actually तो can I say that a place is changing its status by the number of people standing there? Can I say that? Sir, partially it can be. However, sir, the property is changing its nature due to the circumstances of this situation, sir. In the bus, which you are talking about, any example of Jain Travels, there are 100 other people who are also traveling, and this changes the nature of the property. Whether the answer will be changed, suppose all the members belong to the same joint family. Now your Yes, answer sir. will be changed. Yes, sir. वो पब्लिक प्लेस नहीं होगी सर. Now will not be public place. नहीं सर. Sir. And belong to the Rajasthan or Jodhpur. यस सर. डायरेक्ट बस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि जब कोई खेत खाली होता है, खाली खेत के अंदर जब किसान कोई काम करता है ना, और एक उसमें फसल बोने के बाद जो उसके अंदर वो काम करता है, तो वो खाली खेत के अंदर जो काम करता है उसे आप क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है? पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रही है? सर जनरली हमारे गांव साइड पे उसको ये बोलते हैं कि वो खेत में बुआई कर रहा है या जुताई कर रहा है. नहीं, बुआई करने से पहले, बुआई तो करने से पहले क्या काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? सर उसको कभी कभी सर जनरल जो स्पेसिफिक टर्म है वो तो सर मैं अवेयर नहीं हूँ, बट जनरली ये कहते हैं कि खेत को साफ.
किया जा रहा है। वो साफ के लिए क्या वर्ड है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। तो साफ का वर्ड, क्योंकि ये राजस्थानी डायलेक्ट भी आपके पास हिंदू के अंदर है कि नहीं? अच्छा, वो सब उसने फेंक बो दिया और उसमें खरपतवार लग गई और उसके बाद खरपतवार को साफ कर रहा है, उसे आप राजस्थानी डायलेक्ट में क्या कहेंगे? सर हमारे साइड मारवाड़ी डायलेक्ट में उसको कहते हैं खेत निदन रहा है। निदन रहा है। What is the difference between constitutionalism and constitutional law? So constitution is the bare text of the constitution which has been prepared by the Constituent Assembly. The constitutionalism is the ideology which is imparted from the constitution, whereas the constitution law is the principle upon which our constitution works, sir. बताइए कि सपोज कीजिए आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और आपके सामने 5 मुलजिम की ट्रायल चल रही है, 5 मुलजिम हैं, उसमें से 5 आगे हैं और ट्रायल चल रही है, एविडेंस ली जा रही है। उसी समय परिवादी का वकील आकर के आपको ये कहता है कि साहब इस तरह के 5वां तो मुलजिम है ना, वो नहीं है जो होना चाहिए, उसकी जगह उन्होंने किसी और को खड़ा कर दिया है, आपके वकील रह जाते हैं या ए बी सी डी ई आने चाहिए, ई की जगह ई नहीं आकर के एफ को ले आए और उस समय आप क्या करें? और फिर आपने इंक्वायरी की उसके वकील से देखिए, वकील तो वकील का आंसर में इंक्वायरी के पता था उसका आंसर सॉरी सर गलती की। अब इन सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? सर वैसे तो ऑफेंस भी बनता ही है सेक्शन 205 ऑफ आईपीसी का, अगर कोई गलत इंसान गलत मतलब इम्पर्सोनेट कर दे किसी और को। 205 आईपीसी, यस सर, ठीक है। एंड सर नहीं होगा तो मैं 319 की एप्लीकेशन को बोल दूंगा कि आप एप्लीकेशन ले आइए 319 की और मैं इम्प्लीड भी कर सकता हूँ जो एक्चुअल अक्यूज था उसको उसकी जगह पे। एक्चुअल अक्यूज तो बेल आउट है लेकिन उस दिन नहीं आया और उसकी जगह उन्होंने उसके भाई को फ्लैट कर दिया। वो एक्चुअल अक्यूज तो बेंगलोर है और वो उस दिन नहीं आया, तो उसके अंदर आप एज ए मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? बिकॉज़ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन योर प्रेजेंस। यस सर, तो सर अगर तो सर मैं वारंट इशू कर सकता हूँ अगेंस्ट द एक्यूज जो नहीं आया है, और जो आया है उसकी जगह पे उसके अगेंस्ट में सेक्शन 205 का चार्ज भी लगा सकता हूँ सर। ये वो भी उसने आईपीसी का, अगर आप इम्पर्सोनेट कर दो किसी और पर्सन को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सर। Okay, the last question from my side. Procedure code क्या है? Yes sir. तो criminal procedure code क्या है? तो कैसे respect है? Just simple है। Yes sir. क्या कहते हैं? सर पहला चीज़ कोर्ट को लेके, कोर्ट ओपन होनी चाहिए, दोनों में दिया हुआ है। सेकंड चीज़ लैंग्वेज, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, उधर भी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ठीक है। एंड सर तीसरा है जो डिमिनर जो होता है विटनेस का एग्जामिन करने के टाइम, तो सीआरपीसी में भी उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, सीपीसी में भी सर उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है कि जो कोर्ट है वो एग्जामिनेशन करने के टाइम डिमिनर जो है विटनेस का उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है। चलिए, एक वर्ड है रिवीजन, यस सर, और एक वर्ड है कमीशन। यस सर। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीसी सीआरपीसी में डिफरेंस बताइए। यस सर। सर रिवीजन जो सीआरपीसी में है सर वो सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों करते हैं, वेयर सर सीपीसी में रिवीजन सिर्फ हाई कोर्ट करते हैं सर। कमीशन जो है सीपीसी के अंदर सर वो कुछ पर्टिकुलर दिए हुए हैं
आस्पेक्ट्स उसी के लिए इशू होता है। वेयर सर CRPC के अंदर कमीशन जनरली सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए इशू होता है। जनरली मींस व्हाट, क्या अदर पर्पस के लिए भी हो सकता है? Yes, sorry sir, I'm not aware of that. However sir, whatever I've read in the CRPC, sir वो उसको एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए ही इशू करते हैं। जैसे कोई अगर जेल में लॉज्ड है या नहीं आ सकता कोर्ट के आगे, तो उसके एग्जामिनेशन को लेके ही वो एक कमीशन इशू किया जाता है सर। Okay. Trial can be conducted against the third person. Yes or no? Yes sir. Yes. Okay. So you need to wait for the 1 minute. We'll call you again for 1 minute. Thank you sir. Animesh Rajpuri. Yes sir. Animesh, no doubt I'm impressed with your performance. Thank you sir. I hope so that some will okay. But at certain point I do find that कि आपको negative points थोड़ा बचा। ठीक है। जहाँ पर आपका लीगल कॉन्सेप्ट क्लियर है वहाँ पर आपने आंसर की एब्सोल्यूट किया है। 2-3 जगह ऐसी आई सर भी आपको बताया वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि आपने हमको स्किप करने का कोशिश किया। ठीक है सर, प्लीज पॉजिटिव पॉइंट्स एंड आफ्टर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपने एनएलयू से पढ़ा है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आपको you have not to compare with the other university। तो अदर यूनिवर्सिटी में क्या अच्छाइयाँ वो आपको मालूम नहीं हो सकती। ठीक है। आपने अपनी अच्छाइयों को बताया है, आपने बताया कि मेरा उसको मालूम नहीं है लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट में यही अच्छी बात है, तो वो तो आंसर होता है, लेकिन आपने उनको तो भी गलत बता दिया। ठीक है सर। और ये क्लियर आंसर सो दो आई हैव नॉट मेक स्पेसिफिक आपने उस यूनिवर्सिटी पढ़े ही नहीं है, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़े ही नहीं है, इसलिए आपने तो पता चला आंसर क्या है। कंपैरेटिव स्टडी की भी नहीं आपने, बट इफ आई what I feel is this is really favorable than any। ठीक है सर। फिर आप ये अपना पॉइंट बताता, क्योंकि आप जो कह रहे हो एक्सपोजर वकील दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी भी करवाती है, प्रोसीजर लॉ का प्रैक्टिकली तो दूसरी यूनिवर्सिटी भी करवाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके एंगल के आप उसको इंफीरियर बताने के लिए आप सिर्फ वही बताओ जो आपको पता है। ठीक है। फैक्ट तो यही है ना कि आपने कभी कंपैरिजन तो किया नहीं। सही है सर। वहाँ पर भी दूसरे का जाते हैं और अच्छे से सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर। नहीं, ये बात भी है सर। और सर ऐसा भी है ना कि बोलना भी नहीं चाहिए किसी को खराब, किसी भी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम गए ना जो आपको पता है उसके अंदर पढ़ो। ठीक है सर। वो लोग सब कभी ऐसा कंपैरिजन की मैंने चला के क्वेश्चन पूछा आपका आंसर लेने के लिए। ठीक है सर। दूसरा आप मैंने राजस्थान में दोस्तों डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछा था, तो आपने ठीक आंसर तो सही बताया। खरपतवार हो जाती है उसके लिए आप निदान का यूज करते हैं। ठीक है सर। लेकिन खरपतवार यदि पहले से खेत के अंदर ऑलरेडी है और उसको साफ करने के बाद में आप सीधा बोलेंगे, उसको हटाने के लिए क्या करोगे? उसके लिए अपनी तरफ से यूज करते हैं सूड। ठीक है सर। सूड का ठीक है। क्योंकि आप तकनीकी वर्ड्स होते हैं 447 जब हम डिसाइड करेंगे सर, उसमें देखेंगे कि क्या वो खेत खाली था या भरा हुआ था। यदि खेत खाली है तब तो दोनों का कंसेशन हो सकता है, तो जिसका भी वो टाइटल है उसका कंसेशन है, और यदि किसी ने बोर खाया उसके बाद में निदान ही करेगा। Let's depends upon what status of that farm is there। हाँ ठीक है सर। दूसरा आपने एक जल्दबाजी होने को गलत चक्कर बता दिया। अच्छा सर। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आपने आंसर गलत बताया सर की बात। ठीक है। आइए बता दो। देखो इंटरव्यू का पर्पस ये होता है कि आप जो कहो उसको हम सुन सके। ठीक है सर। सुन सके मतलब उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। If you use your command or English in fluency just for the purpose to answer and let go for the next question, though not your intention is not there, right? But sometimes what happened, your quickness, extra quickness while answering in the English makes the other candidates go the board note that you have just skipped it। ठीक है। आपने उसको शॉर्ट के अंदर देकर के भागे, आप कम से कम अपनी स्पीड से बोलो कि हम समझ सकते आप एक को अलग अलग समझाइए। ठीक है सर। शॉर्ट के हैं। आपकी अंदर वॉइस इतनी होगी उसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलर वो जो चीज आनी चाहिए ना, जो कि आपको आता है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन आप तीनों में जो पर्टिकुलर दो का तो आपने अच्छे से बता दिया, तीसरे का आप अच्छे से नहीं बता पाए। ठीक है सर। हॉस्पिटलिज्म को आपको देखना है। ठीक है सर। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में और ऐड करूंगा। हाँ, सर। रेजिडेंट बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है सर। ठीक है ना? ऐसे कई सारे सेक्शन है। 109 अपॉइंटमेंट में क्या वो रेजिडेंट नहीं है, है सर। 115 रेजिडेंट नहीं है, 116 रेजिडेंट नहीं है, 290 रेजिडेंट नहीं है, ऐसे कई सारे वर्ड रेजिडेंट होते हैं।
मतलब जो कुछ स्पेसिफिकली पनिशेबल नहीं है उसको वहां पे पनिश कर दो। ठीक है सर। वो होता है रेजिडुअल। ठीक है सर। ठीक है, आईपीसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कनेक्शन है? अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन की 7th लिस्ट में दे रखा है कि आईपीसी के ऊपर लॉ बनाना कॉन्फ्रेंस लिस्ट का पार्ट है। ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, सेंट्रल पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट भी बना सकती है। ठीक है सर। सर जैसे आपने जब एडल्ट्री का पूछा था तो मैं 127 बोलने वाला था कि ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, बट मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए। देखो डाइवोर्स प्रोसीडिंग का ग्राउंड होता है एडल्ट्री। हाँ वही ना सर, मैं बोलने वाला था कि सीआरपीसी में दिया हुआ, पर मुझे लगा नहीं सर, वो बाहर जाके याद आया। बाहर जाके याद आया, कोई बात नहीं, यही चीज होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, मतलब हमारे माइंड के अंदर आंसर है, थोड़ा पॉज लो। ठीक है सर। पॉज लो ना, इज नॉट अ नेगेटिव एस्पेक्ट। हर बार क्विक आंसर देना जरूरी है। ठीक है। पॉज लो। आपको आंसर आ रहा था, मैं जानता हूँ आपको आंसर आ रहा था एडल्ट्री वाला पॉइंट। ठीक है, आपने भी क्विकनेस लिखा या मुझे भी मौका मिल गया, मैंने कहा चलो ठीक है हम भी क्विकनेस निकाल देते हैं। ठीक है सर। बाकी अदरवाइज आपका स्टेटमेंट वहाँ पे ठीक है। कई बार क्या होता है, एक इंटरव्यूअर आपको लीडिंग करता है, लीडिंग क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने आपको 370 में स्टेटमेंट बोला और आपने एक बार तो हाँ में हाँ भी दिया था, बट इट्स गुड थिंग कि यू हैव एक्सप्लेन इट इमीडिएटली, तो फिर कोई बात नहीं, हाँ चलो आपको समझ में आ गया। बट फिर आपका लिसनिंग मोड थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मेरी तरफ वापस एक इंटरव्यू बोर्ड आपको वापस पूछेगा। ठीक है सर। ओके, नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। हाँ सर, जैसे आपने एफरे पूछा था, तो एफरे पब्लिक प्लेस वाला एसेंशियल इंग्रेडिएंट होना चाहिए ना? हाँ ठीक है। एब्सोल्युटली, मैंने लिखा है इसके अंदर वेल एक्सप्लेन्ड, व्हाटएवर यू मेंशनड इज वेल एक्सप्लेन्ड एंड सर्टेनली द प्लेस होता है ना, उसका स्टेटस चेंज होता है पब्लिक के ओरिएंटेशन से। ठीक है सर। ठीक है, इफ पब्लिक इज देयर तो भले अगर आ वो सिनेमा हॉल ही क्यों ना है, वो एक पब्लिक प्लेस की तरह काउंट किया जाएगा सर। ठीक है सर, है ना। और पब्लिक नहीं है तो अगर रावण का चबूतरे का मैदान है तो भी सिंगल पर्सन खड़ा है तो भी वहां पब्लिक प्लेस की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। हाँ, प्लेस का डिफिनेशन पब्लिक के साथ में किया जाता है, वो पब्लिक प्लेस का। ठीक है, हमने आपको प्रतिनिधित्व के बारे में पूछा था। ठीक है, पर्सोनेशन। हां हां हां, उसमें आपको ये सर what I observed where he committed to positive aspect and to negative aspect. पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि पर्सोनेशन उसके अगेंस्ट में चला जाएगा जो आया है उसकी जगह, हाँ, उस पर्सन की जगह पर। नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहेगा कि वो 319 में चलेगा। 319 तो कब होता है, जो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड एक्यूज नहीं है, हाँ, वो उसको क्यों उसको अंदर लाने के लिए 319 होता है। ठीक है सर। दूसरी चीज आपने गलती की सर ने स्पेसिफिक किया, वो बेल पे छूटा हुआ है। आप कह रहे हो वारंट जारी पहले बेल भी कैंसिल भी तो करेंगे ना। ठीक है सर। होगा कि नहीं होगा, बेल पे छूटा हुआ ना, बेल पे छूटने में कंडीशन होती है आपको आना पड़ेगा कोर्ट जब बुलाएगा, आप नहीं आए तो ये हाजी माफी वर्ड, बेल कैंसिल होना, 319 नहीं आना, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा है ना। और आपने वहाँ पे जिसने पेश किया है सर, जिसके द्वारा भी गलती की है, उसको तो पता ही रहेगा, एडवोकेट को भी बॉन्ड किया जाएगा और वो एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब एडमिशन तो कर लिया उन्होंने, कहा था गलती हो गई, इसका मतलब अब गलती हो गई, एडवोकेट के सामने एडवोकेट विल बी बॉन्ड, यू विल बिकम द कंप्लेनेंट, यू विल फाइल द कंप्लेंट कोड इन द एसीजे और सीजे कोड। ठीक है। Have you watched that movie Jolly LLB? हाँ सर। आपको पता है उसमें एक सीन है, अक्षय कुमार पकड़ के लेके आया था जम्मू कश्मीर से उस बंदे को, और वॉर्न करता है उसको, हाँ, कि अब की बार ऐसा किया तो मैं वहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी में शिकायत कर दूंगा। तो ये पिक्चर सर वाले केस है, रियलाइज हो सकती है, लिंक कर सकते हो आप इसको। अच्छा सर, ठीक है सर। तो कई बार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इतने क्लियर नहीं होते ना हमारे, फ्रेशली ग्रेजुएट है तो इतना सोच ही नहीं पाते हम कि क्या क्या एस्पेक्ट है। इसके एंगल से क्या होता है कि कई बार कुछ चीजों को आप लिंक करते हो ना, अब वो एस्पेक्ट अगर आपके माइंड में आपने एक बार भी सुना होगा, उसको ऑब्जर्व किया होता, तो जॉली एलएलबी मूवी कोई, तो इस आज का भी आंसर आप वहां पर दिख पाते, क्योंकि वहां पे भी क्या था, किसी और पर्सन को आपने उसमें पेश कर दिया, आधार कार्ड दूसरा था, समथिंग लाइक दैट। तो इसके अकॉर्डिंगली ट्रू है। बस एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा, बस 15 to 20 डेज का टाइम है, हां, लीगली मेडिटेटेड। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट सेक्शन पे शानदार था। ठीक है सर, ठीक है सर। एक लास्ट चीज़, जैसे कभी कभी बीच में मोड ऑफ लैंग्वेज चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे अब सर ने हिंदी में पूछा तो अब सर मैं इंग्लिश में। देखो आप कंफर्ट किस,
सर कंफर्ट तो ऐसे देखा तो दोनों में, बट सर अपनी सबकी जब मदर कभी टंग हिंदी में। नहीं तो वो स्पेसिफिक या तो आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या दोनों के अंदर हो। ठीक है। अगर आप इंग्लिश में और स्टार्टिंग हिंदी में सवाल पूछा है तब अपने आंसर के साथ एक लाइन ऐड करो। अच्छा। This is though I'm a bit friendly with the English line, but I would try to answer this question. और फिर अपना आप हिंदी के अंदर आप आंसर भी शुरू कर दो। तो इंटरव्यू समझ कोई बात नहीं, इंग्लिश में बोल दो, इंटरव्यू खुद कह देगा। लेकिन अगर आपकी दोनों भाषा के अंदर कमांड और आपने जाहिर कर दिया है कि देखो आप एनालिसिस जिक्र कर दिया तो फिर हम मान के चलेंगे कि आपके पास कमांड होने वाला इंग्लिश का तो इम्प्लाइड है, ठीक है। बट हिंदी का इसलिए जरूरी क्योंकि आपको पोस्टिंग ज्यादा दी जाएगी, वहाँ पर हिंदी भाषा में काम काज होता है, ठीक है। उस केस के अंदर सर आई एम नॉट फ्रेंडली अबाउट दिस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, आप बताओ इसका अपना आंसर अपने अकॉर्डिंगली। अदरवाइज जैसा अगर आप दोनों भाषा आपको आती है तो जैसा सर ने हिंदी में पूछता है हिंदी में आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है सर। इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में देने का आंसर, ठीक है सर। ओके, ठीक है। और बाकी कुछ जगह यूज करो, स्विच करना हमें आना चाहिए, दैट्स अ हुनर ऑफ एन एडवोकेट एज अ जज, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर।